جمعرات 27 مارچ کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ جنوبی کوریا کے جنگلات میں تباہ کن آگ بجھانے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری، ہلاکتوں کی تعداد 26 ہو گئی۔ 역대 최악의 산불 기록을 갈아쓰고 있습니다. 산불 진화 과정에서 유명을 달리하신 4분을 포함하여 현재 기준 총 18분이 목숨을 잃고 ترکی میں اکرم امام اوغلو کی گرفتاری پر احتجاجی مظاہرے 8ویں روز میں داخل، 1400 سے زائد افراد گرفتار۔ صدر اردوان کی عوام سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ Sokaklarda terör estirenlerin, bu ülkeyi yangın yerine çevirmek isteyenlerin varacağı hiçbir menzil yoktur. Girdikleri yol çıkmaz sokaktır. بلوچستان کے علاقے کلمت میں بس سے اتار کر مسافروں پر فائرنگ، 5 افراد ہلاک۔ پاکستانی وزیر اعظم کی گوادر میں فائرنگ سے مسافروں کی ہلاکت کی مذمت۔ آج جس جگہ پہ ہم پہنچے ہیں تو ایک طرف دہشت گردی اور دہشت گردی کے خلاف نمبردار زماں کڑیل جوانیوں کی قربانیاں، اور دوسری طرف پاکستان کے اندر اور باہر ان کا سنگین مذاق اڑایا جائے، ان کی تضحیق کی جائے، اس سے بڑی ملک دشمنی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ امریکہ میں عمران خان کی رہائی اور پاکستان کے آرمی چیف پر پابندی سے متعلق بل پیش۔ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ میں کیا ہے کہ جی امریکہ میں ایک قانون پیش کر دیا گیا ہے، جو ولسن نام کا ایک 2 نمبریہ ہے وہاں کا۔ اب وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے ایک قانون جو ہے وہ بس متعارف کروا دیا ہے، وہ جیسے ہوا تو 180 یا 140 دنوں کے اندر جو ہے ہماری ریاست کے ایک بہت طاقتور افسر ادارے کے سربراہ کی امریکہ کا ویزا تو ایک ملے گا۔ امریکی اعلیٰ عہدیداروں کی سگنل گروپ چیٹ لیک۔ سگنل ایپ کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے؟ اگر آپ theatlantic.com کی سٹوری کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لائیو چیٹ میں ڈسکشن کر رہے ہیں جس میں نائب صدر بھی شامل ہیں۔ انڈیا میں پنجاب پولیس کے اہلکاروں کے ہاتھوں فوجی افسر کی پٹائی، منصفانہ تفتیش کا مطالبہ۔ The unfortunate incident of assault on a serving army officer is an aberration which will be dealt with in accordance with law. 16 روز کے تعطل کے بعد کوئٹہ کے لیے ٹرین سروس بحال، جعفر ایکسپریس پشاور سے کوئٹہ کے لیے روانہ۔ انشاءاللہ تعالی رحمان یہ جعفر ایکسپریس جو ہے یہ آج روانہ ہوگی اور کل شام کو انشاءاللہ تعالی رحمان یہ کوئٹہ اپنی منزل تک پہنچے گی۔ امریکی کمیشن کی رپورٹ میں انڈین خفیہ ایجنسی راہ پر مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزیوں کے باعث پابندیاں عائد کرنے کی سفارش۔ Ministry of External Affairs has once again come out with a strong statement condemning the characterization of the US State Department and the manner in which the Religious Freedoms Index has been weaponized. ملیے دلی کی جامع مسجد میں افطار کرانے والی ہندو لڑکی سے۔ میرا مقصد جو ہے یہاں پر لوگوں تک کھانا پہنچانا نہیں ہے، میرا مقصد یہاں پر لوگوں تک محبت پہنچانا ہے۔ اور رمضان کے اس آخری ہفتے میں جانیے جاپانی مسلمانوں کا مقبول پکوان کیا ہے۔ السلام علیکم، konnichiwa. My name is Nur Arisa Mariam and I was born and raised in Tokyo, Japan. اصحاب کاف یعنی سینکڑوں برس غار میں رہنے والوں کے بارے میں مسیحی اور اسلامی روایات کیا ہیں؟ اردن کی دارالحکومت عمان کے مشرق میں ایک قصبہ ہے جس کا نام الرجیب ہے۔ یہاں موجود ایک غار میں 7 ایسی قبریں ہیں جنہیں مسیحی اور مسلم زائرین دیکھنے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر موضوعات بھی آج کے سیربین میں شامل ہیں، لیکن سب سے پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ جنوبی کوریا کے حکام نے ملک کے جنوب مشرقی علاقوں میں جنگلات میں لگی آگ پر قابو پانے کے لیے ریسکیو آپریشن دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ ایک ہفتے قبل لگنے والی آگ سے کم از کم 26 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 30 سے زیادہ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق زخمیوں میں سے 8 افراد کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ ہزاروں ہیکٹر رقبہ مکمل جل چکا ہے۔ حکام کے مطابق آگ کی وجہ سے ہزاروں افراد نقل مکانی کر چکے ہیں۔ This is being called one of the worst wildfire disasters South Korea has ever faced. It all kicked off in Uiseong County, but with winds blowing at nearly 27 meters per second.
the flames just quickly spread to places like Andong City and Cheongsong County. कोरिया फॉरेस्ट सर्विस के मुताबिक शुमाली सूबे ग्योंगसोंग में इस वक्त 35,000 हेक्टेयर से ज्यादा रकबे पर फैली आग मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी आग है। जुमे के रोज लगने वाली इस आग में तेज और खुश्क हवाओं की वजह से शिद्दत आई, जबकि बुध के रोज रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ, जिस दौरान एक पायलट हलाक हो गया और आग लगने से कम अज कम 3 फायर फाइटर्स भी जान की बाजी हार चुके हैं। 역대 최악의 산불 기록을 갈아쓰고 있습니다. 산불 진화 과정에서 유명을 달리하신 4분을 포함하여 आग पर काबू पाने के लिए हजारों फायर फाइटर्स और फौजी एहलकारों को तैनात किया गया है। आग से यूसियोंग शहर में एक 1300 साल पुराना मंदिर जलकर तबाह हो गया है, जबकि दीगर सकाफती मुकामात को भी शदीद खतरात लाहक हैं। तुर्की में सदर उर्दुआन के हरीफ एकरम इमाम ओलो की गिरफ्तारी पर एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला 8वें रोज में दाखिल हो गया है। एहतजाजी मुजाहिरों में तुलबा, साफी और वकला समेत हजारों अफराद ने एहतजाज में हिस्सा लिया है। एक अंदाजे के मुताबिक एहतजाज शुरू होने से अब तक 1400 से जायद अफराद को एहतजाज करने पर गिरफ्तार किया जा चुका है। ये एहतजाज गुज़िश्ता बुध से उस वक्त शुरू हुआ जब इस्तांबुल के मेयर एकरम इमाम ओलो को बदउनवानी के इल्जामात पर गिरफ्तार किया गया था। याद रहे कि एकरम इमाम को सदर रजब तैयब उर्दुआन का अहम सियासी हरीफ भी समझा जाता है। दूसरी जानिब इंसानी हुकूक की तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा ने इन गिरफ्तारियों और पुलिस की जानिब से ताकत के इस्तेमाल की मजम्मत की है। एकरम इमाम ने इन इल्जामात को सियासी इंतकाम करार दिया है, ताहम सदर उर्दुआन ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया है। मंगल को अनकरा में एक अफ्तार के मौके पर नौजवानों से खिताब करते हुए सदर उर्दुआन ने अवाम से सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की और कहा कि मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। Sokaklarda terör estirenlerin, bu ülkeyi yangın yerine çevirmek isteyenlerin varacağı hiçbir menzil yoktur. Girdikleri yol çıkmaz sokaktır. Gençlerimizin terör örgütleri ve marjinal yapıların yanı sıra siyaseti rant aracına çeviren hırsızlar, yolsuzlar, ilkesizler tarafından kullanılmasına da izin vermeyeceğimizi burada tekrar hatırlatıyorum. पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के इलाके कलमत में बस से उतार कर मुसाफिरों पर फायरिंग करके 5 अफराद को हलाक करने को अफसोसनाक करार देते हुए इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है। 5 अफराद की हलाकत का वाक़या गुज़िश्ता रोज़ ज़िला गवादर में कोस्टल हाईवे पर पसनी और कलमत के दरमियान पेश आया था। कोस्टल हाईवे पुलिस के एसपी हफीज़ बलोच ने बीबीसी को बताया कि नामालूम मुसल्लह अफराद ने गवादर की जानिब से कराची जाने वाली एक बस से 6 अफराद को उतारा। बस से उतारने के बाद मुसल्लह अफराद ने उन पर गोली चलाई, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक और एक जख्मी हो गया। उन्होंने ये भी बताया कि इस इलाके में मुसल्लह अफराद ने एक गाड़ी को भी नजर आतिश किया। ख्याल रहे कि कुछ अरसा कबल भी इस इलाके में मुसल्लह अफराद ने कोस्टल हाईवे पर 4 गैस बाउजर को नुकसान पहुंचाया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से जारी बयान में मुसाफिर बस पर फायरिंग के वाक़े में हलाक होने वालों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि दहशत गर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए मासूम लोगों को निशाना बनाया। शरपसंद अनासर बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। मुल्क दुश्मन अनासर के अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इस वाक़े में ज़ख्मी होने वाले अफराद को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी हैं। दूसरी जानिब ज़िला मस्तोंग में नाकाबंदी के दौरान मुसल्लह अफराद ने CTD के 2 एहलकारों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में CTD के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जावेद लहडी हलाक हो गए, जबकि दूसरे एहलकार जख्मी हैं। डिप्टी कमिश्नर मस्तोंग ने तस्दीक की है कि नामालूम मुसल्लह अफराद ने कोयटा जैकब आबाद शाहराह पर दराबुलान के बाज़ मुकामात पर नाकाबंदी करने के अलावा कोयटा कराची हाईवे पर भी नाकाबंदी की है। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाई और मुल्क में जमहूरियत की बहाली से मुतल्लिक एक बिल पेश किया गया है और पाकिस्तान की सियासी व अस्करी क़यादत की अमरीका आमद पर पाबंदी को भी इस बिल का एक अहम हिस्सा बनाया गया है।
अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में 24 मार्च को रिपब्लिकन रुकन जो विल्सन और डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस जेम्स वर्नी ने पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के उन्वान से ये बिल पेश किया है। इस बिल में दर्ज है कि ऐसी मखसूस बैरूनी शख्सियात पर पाबंदी आयद की जाए जो पाकिस्तान में सियासी हरीफों को कैद करने और उनके खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। इस बिल के हवाले से रिपब्लिकन रुकन जू विल्सन का मुतालबा है कि वीज़े पर पाबंदी के जरिए पाकिस्तान की फौजी क़यादत पर दबाव डाला जाए ताकि पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली और इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में इस बिल के पेश किए जाने पर BBC ने दफ्तर खारिजा का मौक़िफ़ जानने के लिए उनसे रब्ता किया है, ताहम अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान टिमी ब्रूस ने इमरान खान की कैद पर तबसरा करने से इनकार करते हुए कहा था कि अमरीकी इंतज़ामिया दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करती हैं। दूसरी तरफ माहिरीन इस तरह की कानून साजी को इनफरादी अमल करार दे रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद का कहना है कि ये खबर PTI के लिए इत्मीनान का बाइस तो है, मगर इस खुशी की उन्हें कोई मंतक समझ नहीं आती। उनकी राय में ये एक इनफरादी फेल है और ऐसी किसी मुजवज़ा पाबंदी का इम्कान भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। VPN लगाइए और सोशल मीडिया के फॉलो कीजिए। सोशल मीडिया पे ढोल बजाए जा रहे हैं PTI के रिकग्नाइज जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, हत्ता कि इनकी ऑफिशियल साइट भी PTI ऑफिशियल साइट कि जी अमेरिका में एक कानून पेश कर दिया गया है। वो जो विल्सन नाम का एक 2 नंबरिया है वहाँ का, बड़े बड़े सेनेटर तो है वो यार नौसरबाज होते ने, रुकने रिप्रेजेंटेटिव है, सेनेटर नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी वहाँ की कौमी असम्बली का रुकन, ठीक है, लोअर हाउस। अब वो ये दावा कर रहा है कि मैंने एक कानून जो है वो बस मुतारिफ करवा दिया है। वो जैसे ही हुआ तो 180 या 140 दिनों के अंदर अंदर जो है हमारी रियासत के एक बहुत ताकतवर अफसर इदारे के सरबराह की अमेरिका का वीज़ा तो नहीं एक मिलेगा, दूसरा ये कि मज़ीद में उनकी ज़िंदगी अज़ाब हो जाएगी। इस पे ढोल बजाए जा रहे हैं। इसी बात को सजाद बरकी साहब भी प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने पहले ये कहा था कि जल्द ही कल ही खुशखबरी आने वाली है। अच्छा, अब उस खुशखबरी की हकीकत ये है, मैं क्यों जो विल्सन को कह रहा हूँ 2 नंबरी, हमारे यहाँ चूँकि लोगों को रिसर्च का, तहकीक का, काउंटर चेक करने का, फैक्ट चेक करने का, वो तो ये सुनना चाहते हैं कि नुसरत जावेद साहब ये कहते हैं कि जनाब जो विल्सन ने कहता है तो कानून बनने वाला। ये जनाब वेबसाइट है अमरीकी कांग्रेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये आज 7:30 पर हमने पाकिस्तानी वक्तनुसार इस प्रोग्राम पर जाने से पहले उठाई है। इसमें भाई 23 मार्च तक के जितने भी कवानीन वहाँ पे मुतारिफ करवाए गए हैं, टेबल हुए हैं जो, वो सब की फहरिस्त ये इसमें मौजूद है। उसमें है ये बिल कौन से नंबर पे? इसमें कहीं भी वो बिल मौजूद नहीं है जिस पे PTI का सोशल मीडिया जो है वो लुटियाँ डाल रहा है। ये भाई ये जब भी दिल करे आप भी खुद जो है, तो इसमें तो लिखता है कि आई एम ग्रेटफुल टू इंट्रोड्यूस द पाकिस्तान। ये तो कह रहा है मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया। इंट्रोड्यूस घर पे आके करा दो, मैं तेन इंट्रोड्यूस कराया कि यार है मैं कानून मंजूर कराना है। सामीन, खबर है कि अमरीकी आला ओहदेदारों की सिग्नल ग्रुप चैट लीक हुई है, लेकिन ये सिग्नल ऐप क्या है और ये कैसे काम करती है, जानिए इस रिपोर्ट में। अगर आप theatlantic.com की स्टोरी को देखें तो आपको पता चलेगा कि वो लाइव चैट में डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें नायब सदर भी शामिल हैं। यमन पर हमला की अफादियत और इसके यूरोपीय पहलू और दीगर मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है, लेकिन मेरी समझ के मुताबिक कमर्शियल मैसेजिंग ऐप्स पर ऐसी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। वो काफ़ी खुशकिस्मत हैं कि उन्होंने किसी गलत फ़ोन नंबर के बजाय मेरा फ़ोन नंबर इसमें शामिल किया। मेरा मतलब है कि कम अज़ कम किसी ऐसे शख्स का नंबर शामिल नहीं हुआ जो हुसियों की हमायत करता हो, क्योंकि वो ऐसी मालूमात दे रहे थे मुझे यकीन है कि जिनकी वजह से इस ऑपरेशन में शामिल अमेरिकी सर्विस के लोगों की जिंदगियों को खतरा लाहक हो सकता था। इंडिया की फौज ने अपने एक हाजिर सर्विस कर्नल और उनके बेटे की पंजाब पुलिस के बाज़ एहलकारों के जरिए मुबैना तौर पर पिटाई के मामले की गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना तफ्तीश का मुतालबा किया है।
ये वाकया इंडिया की रियासत पंजाब में 13 मार्च को पेश आया था। मुकामी पुलिस ने इब्तिदाई तौर पर मुतासिरा कर्नल की FIR भी दर्ज नहीं की थी और अब ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। जब पुलिस और फौज के दरमियान ये मामला तूल पकड़ गया तो सूरत हाल की नज़ाकत को देखते हुए वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स के आला अफसर लेफ्टिनेंट जनरल मोहित वाधवा और पंजाब पुलिस के सरबराह गौरव यादव ने मंगल के रोज चंडीगढ़ में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। दोनों अफसरान ने इसे अफसोसनाक अनहोना वाकया करार दिया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट मोहित वाधवा ने कहा कि कर्नल पुष्पिंदर सिंह और उनके बेटे पर हमला करने के कसूरवारों को सजा देने के लिए गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना तफ्तीश कराई जाए। उन्होंने कहा कि हम इस मुतालबे का इयादा करते हैं कि कसूरवारों को सजा देने के लिए पूरी शफाफियत के साथ एक मुकर्ररा मुद्दत में ईमानदाराना और मुनसिफाना तफ्तीश की जरूरत है। The unfortunate incident of assault on a serving army officer is an aberration which will be dealt with in accordance with law. I would appeal to everyone not to indulge in criticizing the situation or making the present situation into an army versus police one. लेफ्टिनेंट जनरल वाधवा ने यह भी कहा कि फौज को इस वाकये की इतला 15 मार्च को दी गई थी। इसके बाद हमने इस मामले में कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पंजाब इंतजामिया और पुलिस के आला तरीन रहनुमाओं से बात की है। मैं सभी को यकीन दिलाना चाहता हूं कि फौज इस मामले को इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर रहेगी। पिशावर से कोयटा के दरमियान ट्रेन का सफर तकरीबन 2 हफ्ते मुअत्तल रहने के बाद जुमेरात के रोज बहाल कर दिया गया है, जिसके बाद पिशावर के रेलवे स्टेशन से जाफर एक्सप्रेस कोयटा के लिए रवाना कर दी गई है। BBC को रेलवे एहलकारों ने बताया कि जुमेरात की सुबह 7:30 पर जाफर एक्सप्रेस कोयटा के लिए रवाना हो गई है। 16 रोज तक इस रूट पर ट्रेन सर्विस मुअत्तल रहने के बाद आज 300 मुसाफिर जाफर एक्सप्रेस में रवाना हुए हैं। इसमें रिफाकी हुकूमत ने दिलचस्पी ली है और देख रहे हैं कि ये लाइन फिर आज से बहाल हो रही है और इंशाअल्लाह ताला रहमान ये जाफर एक्सप्रेस जो है ये आज रवाना होगी और कल शाम को इंशाअल्लाह ताला रहमान ये कोयटा अपनी मंजिल तक पहुंचेगी। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह फुल प्रूफ सिक्योरिटी का बंदोबस्त मरकजी हुकूमत ने किए हुए है और फिर वो आगे जाके मतलब है कि बलूचिस्तान के एरिया में उस हुकूमत ने सूबाई हुकूमत ने भी किए हुए है। तो इंशाअल्लाह ताला रहमान मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि ये उन लोगों को एक अच्छा मैसेज जाएगा जो पाकिस्तान के दुश्मन है, जो कि मतलब इस काम को फेल करना चाहते थे। याद रहे कि 11 मार्च को बलूचिस्तान के इलाके बोलान में दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके खवातीन और बच्चों समेत तमाम मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया था। इस हमले से मुतल्लिक पाकिस्तानी फौज का कहना है कि सूबा बलूचिस्तान के इलाके बोलान में जाफर एक्सप्रेस की हाई जैकिंग के बाद 354 मुसाफिरों को रेस्क्यू किया गया, जबकि इस हमले में 18 फौजी और FC एहलकारों समेत मजमूई तौर पर 26 अफराद हलाक हुए थे। सरकारी टीवी के मुताबिक जुमेरात की सुबह वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने मुसाफिरों को पिशावर से रुखसत किया, जबकि जाफर एक्सप्रेस जुमे को कोयटा से पिशावर आएगी। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर मुकाम का कहना था कि जो बलूचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते थे उन्हें मायूसी हुई है। दहशत गर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहिद है, मखसूस जमात नफरत व शर अंगेजी का मुजाहरा कर रही है। अमेरिका के कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी ने अपनी एक रिपोर्ट में इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी राह पर मजहबी आज़ादी की संगीन खिलाफ वर्जियों की निशानदेही करते हुए इसके खिलाफ पाबंदियों की सिफारिश की है। अमेरिकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी यानी USCIRF ने मंगल को अपनी सालाना रिपोर्ट 2025 जारी की है, जिसमें मजहबी आज़ादी की संगीन खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की गई है। दूसरी जानिब इंडिया ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद और हक़ाइक़ के मुनाफी करार देकर तंजीम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी पैनल ने मजहबी आज़ादी के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया में अक़लियतों के साथ सलूक अबतर होता जा रहा है और सिख अलहदगी पसंदों के कत्ल की साजिशों में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने पर कमीशन ने सिफारिश की है कि इंडिया की एजेंसी राह पर पाबंदियां आयद की जाएं। रॉयटर्स के मुताबिक कमीशन ने मंगल को जारी की गई रिपोर्ट में कहा कि 2024 में इंडिया में मजहबी आज़ादी के हालात ख़राब से ख़राब तर होते चले गए और इस अरसे के दौरान मजहबी अक़लियतों के खिलाफ हमलों और इम्तियाजी सलूक में इजाफा होता गया। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी BJP ने गुज़िश्ता साल की इंतखाबी मुहिम के दौरान मुसलमानों और दीगर मजहबी अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयानबाजी और गलत मालूमात का प्रोपेगेंडा किया।
किया। इंडिया ने बुध के रोज इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए इसे मुतअस्सिबाना और सियासी तौर पर हौसला अफजाई की तशखीश का हिस्सा करार दिया है। सामीन, एक हिंदू लड़की नेहा भारतीय दिल्ली की जामिया मस्जिद में कई बरस से रमजान में हर रोज सैकड़ों रोजेदारों के लिए अफ्तारी का एहतमाम करती है। वो कहती है कि वो खाना नहीं, मोहब्बतें बांट रही है। इस बारे में सुनिए शकील अख्तर की ये रिपोर्ट। मेरा मकसद जो है यहाँ पर लोगों तक खाना पहुँचाना नहीं है, मेरा मकसद यहाँ पर लोगों तक मोहब्बत पहुँचाना है। मेरा नाम नेहा भारती है और मैं जामा मस्जिद पे पिछले 3 साल से लगातार इफ्तार करा रही हूँ। आज हमारे पास पकोड़े हैं और हम पकोड़े बनाकर लेकर जा रहे हैं इफ्तारी में। पहले दिन हम पकोड़े बनाकर लेकर जा रहे हैं। हर रोज़ हम अलग अलग चीज़ें बांटते हैं। मेरे घर वाले और मैं, हम सब मिलकर, मेरे दोस्त लोग काफ़ी सारे, हम सब मिलकर इफ्तारी बनाते हैं खुद से, घर में खुद से इंतज़ाम करते हैं और यहाँ पर लेकर आते हैं और रोज़े के टाइम रोज़ेदारों को उनका रोज़ा हम खुलवाते हैं। हमारे लिए बहुत खुश नसीबी है कि बहुत से लोग हमसे इफ्तारी लेने आते हैं। मैं नॉन मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर आती हूँ। आज हमें पूरे 23 दिन हो चुके हैं यहाँ पर आते हुए। जब से मैं पैदा हुई यही सीखा कि हिंदू मुसलमान सब एक है, कोई अलग नहीं है। उसके बाद मैंने सोचा कि इतनी ज़्यादा नफरतें बढ़ रही हैं, सोशल मीडिया पे देखा, अपनी आंखों से देखा सुना, तब मैंने सोचा नहीं यार, कुछ तो करना बनता है। शुरू में जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो मैंने अपने घर वालों से पैसे लिए और फिर उसके बाद जब मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा हम इतना पैसा नहीं लगा सकते, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस डालना स्टार्ट किया। सोशल मीडिया से काफ़ी लोगों ने बोला कि हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, हम आप तक सामान पहुँचाना चाहते हैं, जो भी आप सामान चाहे। तो फिर मैंने कहा चलिए ठीक है, अगर लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है और ख़ास कर जो मोहब्बतें मैं देखना चाहती थी कि लोग शायद खुद जामा मस्जिद में आके नहीं कर पाए पर वो हमारे थ्रू कर रहे थे। फिर हिंदू लोग, मुसलमान लोग, सिख भी लोग, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे सामान पहुंचाना स्टार्ट किया। फिर मैंने सोशल मीडिया पे लगातार अपनी वीडियोस डालना स्टार्ट किया, उनसे मुझे सहयोग मिला और आज हम ये कर पा रहे हैं। लोगों का रिस्पांस बहुत पॉजिटिव रहता है, लोग फोटोज़ खिंचवाने आते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत अच्छे कॉमेंट्स पास करके जाते हैं, बहुत अच्छा रहता है। सबको पता चलना चाहिए कि जो नफरतें हैं कितनी भी बढ़ाने की कोशिश कर दी जाए, मोहब्बतें ज़िंदा रहेंगी। तो मेरा जो मेन मकसद है, मेन पैगाम है, वो है मोहब्बतें ज़िंदा रहनी चाहिए। रमज़ान के इस आखिरी हफ्ते में आए आज आपकी मुलाकात एक जापानी हलाल सुपरवाइज़र और शरिया ऑडिटर से कराते हैं और देखते हैं कि अफ्तार के लिए उनका पसंदीदा पकवान क्या है। मिलिए नूर मरियम से, जिन्होंने 2015 में इस्लाम कबूल किया। आलिया नाज़की और किरण फातिमा की इस रिपोर्ट में। Assalamu alaikum, konnichiwa. My name is Nur Arisa Mariam and I was born and raised in Tokyo, Japan. I currently work as a halal supervisor and a sharia auditor. I converted to Islam in 2015 after being deeply moved by the Quran. As a Japanese person, I would say that miso soup is an essential food during Ramadan. Since I prioritize eating healthy meals, I pay special attention to nutrition while fasting. Dehydration is a concern since we don't drink water during the day, and fasting can also cause a drop in body temperature. A warm bowl miso soup helps address both of these issues. First, I place dried kelp, which is called kombu in Japanese, in cold water and let it sit for an hour. After an hour, heat the water with the kombu in it. Just as small bubbles start to form, remove the kombu, then bring the broth to a boil. Interestingly, my first experience with Ramadan was before I became Muslim. I went to the mosque with my Muslim friends and I tried fasting out of curiosity, but I could only last half a day before giving up. At the time, I thought fasting was extremely difficult and exhausting. However, since the year I converted, I have never felt that fasting is difficult. Once the kombu broth reaches a boil, turn off the heat. With the heat off, add a generous amount of dried bonito flakes,
Finally, strain out the katsuobushi, leaving only the clear, flavorful broth. Once the kombu and the katsuobushi broth comes to a boil again, it's time to add the ingredients for the miso soup. Today, I'm using cabbage and fried tofu. I add them to the broth and let them simmer until they become tender and ready to eat. Nowadays, fasting has become easier, especially since the fasting hours are shorter. The part I enjoy most about Ramadan is the time I spend connecting with the Quran. Since I eat less frequently, I naturally have more time to focus on my spirituality. Once the ingredients have softened, we move on the final step of making miso soup. Avoid adding miso while the soup is boiling, as high heat can diminish its delicious flavor. Once the miso is fully dissolved, the miso soup is ready to serve. During iftar, we often crave a variety of dishes, making Japanese cuisine a perfect choice. Miso soup is an essential part of Japanese food, so I'm delighted to share how to make it with everyone. उर्दन की दारुल हुकूमत अमान के मशरिक में एक कस्बा है जिसका नाम अल रजीब है। यहाँ मौजूद एक गार में 7 ऐसी कब्रें हैं जिन्हें मसीही और मुस्लिम ज़ायरीन देखने जाते हैं। इन कब्रों के बारे में इन ज़ायरीन का अकीदा है कि ये उन 7 नौजवानों की हैं जिन्होंने रोमन दौर में मजहबी बुनियादों पर किए जाने वाले जुल्म से बचने के लिए यहाँ पनाह ली थी और फिर एक मौजज़े के नतीजे में सदियों तक मसीही रिवायत में इन नौजवानों को 7 स्लीपर्स या स्लीपर्स ऑफ एफिसस कहा गया है, जबकि कुरान में इन्हें असहाबुल कहफ, असहाबुल रकीम और अल्लाह की निशानियों में से एक बताया गया है। सैकड़ों बरस तक सोने वाले 7 नौजवानों का किस्सा तारीखदानों की रिवायत के साथ साथ कुरान और मसीही रिवायात में किस तरह बयान किया गया है, इसी बारे में है आज का बीबीसी रीड्स। मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं बीबीसी रीड्स। तो पहले बात मसीही रिवायत की। मसीही रिवायत के मुताबिक 250 ईस्वी में रोमन शहंशाह डेसियस के दौर में जब हज़रत ईसा के पैरोकारों पर जुल्म सितम किया जा रहा था तो 7 और बाज़ रिवायत के मुताबिक 8 मसीही नौजवान अपने आबाई शहर एफेसिस के करीब मौजूद एक गार में छुप गए। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक इस गार का मुंह बाद में बंद हो गया और ये नौजवान मौजज़ाती तौर पर नींद में चले गए। इसके बाद 1 सदी से ज़्यादा का वक्त गुजर गया और जब रोमन शहंशाह थियोडोसिस II के दौर में ये गार खोला गया तो ये नौजवान नींद से बेदार हुए। उनकी गार में मौजज़ाती मौजूदगी और गवाही ने शहंशाह को मुतासिर किया, क्योंकि ये वाक़या उनके मसीही अक़ीदे के तहत मुर्दों के जी उठने की तस्दीक कर रहा था। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की मुदीर मेलिसा पेट्रोजेलो लिखती हैं कि अपने तजर्बे की गहरी मानवियत बयान करने के बाद ये 7 अफराद वफ़ात पा गए, जिस पर शहंशाह ने उनकी बाक़ियात को एक शानदार मकबरे में महफूज करने का हुक्म दिया। इस मौज़ाती वाक़े को मुख्तलिफ दानिश्वरों और मुहक्किकीन ने अपने अपने अंदाज में दर्ज किया है। पेट्रोजोलो लिखती है कि बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक ये रिवायत सबसे पहले यूनानी मुसन्निफ सैम्यून मेटाफरेस्टिस ने लिखी, जबकि दीगर रिवायात में लातीनी मुसन्निफ सेंट ग्रेगरी और सिरियानी मुसन्निफ जैकब ऑफ सिरा की तहरीरें शामिल हैं, जिनसे कॉप्टिक या क़िब्ती और जॉर्जियाई नुस्खे मुमकिना तौर पर अग़्ज़ा किए गए। पीटर डब्ल्यू वैन डियर होर्स्ट अपनी किताब पायस लॉन्ग स्लीपर्स इन ग्रीक, जूइश एंड क्रिश्चियन एंटिक्विटी में लिखते हैं कि इस कहानी का सबसे कदीम मालूम नुस्खा तकरीबन 450 से 521 ईस्वी में शामी बिशप जैकब ऑफ सिरा की तहरीरों में पाया जाता है। उनके मुताबिक ये कदीम यूनानी माक़िज़ पर मबनी है जो अब नापैद हो चुका है। मौलाना मौदूदी अपनी तफसीर में लिखते हैं कि जैकब ऑफ सिरा की सिरियानी रिवायत एक तरफ इब्तदाई दौर के मुस्लिम मुफस्सिरीन तक पहुंची, जिसे इब्न जरीर तबरी ने मुख्तलिफ सनदों के साथ अपनी तफसीर में नकल किया, और दूसरी तरफ यूरोप पहुंची जहां यूनानी और लातीनी ज़बानों में इसके तर्जुमे और खुलासे शाया हुए। एडवर्ड गिबन ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर में
7 स्लीपर्स के उन्वान के तहत इस किस्से का जो खुलासा दिया है वो मुस्लिम मुफस्सिरीन की रिवायत के तकरीबन हूबहू है। ब्रिटिश म्यूजियम में एक शामी मैन्युस्क्रिप्ट में मौजूद 6वीं सदी ईस्वी के एक और नुस्खे में 7 के बजाय 8 सोने वालों का जिक्र मिलता है। अमान के कस्बे अल-रजीब के अलावा असहाबे कहफ के गार का तुर्की और शाम समेत मुतादिद दीगर मकामात पर होने से मुताल्लिक भी दावा किया जाता है। हालांकि असल जगह का हतमी तयन नहीं हो सका है, लेकिन अमान के करीब गार में मकबरे और हवा की निकासी के लिए एक रास्ते की मौजूदगी इस जगह को बाकी मकामात के मुकाबले में ज़्यादा सनद फराहम करती है। अब बात कि कुरान में इस वाक़े को कैसे बयान किया गया है। ये वाक़या अरब माशरे में भी मुतारिफ हुआ। अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी किताब असहाबे कहफ में लिखा है कि मुशरिकीन अरब की मालूमात के हुसूल के वसाइल महदूद थे, लेकिन नबतियों के तिजारती काफ़िले बराबर हिजाज में आते रहते थे और ख़ुद मक्का के तिजारती काफ़िले भी हर साल शाम जाया करते थे। यकीनन नबतियों में इस वाक़े की शोहरत होगी और ये वाक़या उन्हीं से अरबों ने सुना होगा। ये नबती शुमाली मगरबी जज़ीरा नुमा अरब और जुनूबी सरजमीन शाम में रहते थे और 7वीं सदी में मुशरिकीन ने उन्हीं के मशवरे पर पैगम्बर इस्लाम का इम्तिहान लेने के लिए 3 सवालात किए थे। इन सवालात में से एक सवाल ये भी था कि असहाबे कहफ या गार वाले कौन थे। सैयद अबुल आला मौदूदी की लिखी तफसीर तफहीमुल कुरान के मुताबिक पैगम्बर इस्लाम से मुशरिकीन की जानिब से पूछे गए 3 सवालात, जिनमें से दीगर 2 ख़िज़र और ज़ुल्क़रनैन की हकीकत से मुताल्लिक़ थे, उन्हीं के जवाब में सूरह कहफ नाजिल हुई। तफहीमुल कुरान के मुताबिक ये तीनों क़िस्से मसीहियों और यहूदियों की तारीख़ से मुताल्लिक़ थे। हिजाज में इनका कोई चर्चा न था। सूरह कहफ में पैगम्बर इस्लाम से गार वालों से मुताल्लिक़ पूछे जाने वाले सवाल का जवाब यूँ दिया गया कि हम उनकी सरगुज़िश्त तुम्हें ठीक ठाक सुनाते हैं। वो चंद नौजवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए और उनकी हिदायत में हमने अफजूनी अता फरमाई और उनके दिल उस वक्त मजबूत कर दिए जब वो तौहीद की दावत लेकर उठे और ऐलान किया कि हमारा रब वही है जो आसमानों और ज़मीन का रब है। हम उसके सिवा किसी दूसरे माबूद को हरगिज़ न पुकारेंगे और अगर ऐसा करेंगे तो हक़ से निहायत बटी हुई बात करेंगे। जावेद अहमद गामदी अपनी तफसीर में लिखते हैं कि ये लोग अगर वही हैं जो मसीही तारीख़ में 7 सोने वाले कहे जाते हैं तो ये शहर एफेसिस का किस्सा है जो तुर्की के मगरबी साहिल पर वाक़े ज़माने क़दीम का एक मशहूर शहर था। गामदी के मुताबिक ये शहर बुत परस्ती का एक बड़ा मरकज़ था और यहाँ चांद देवी की परस्तिश होती थी जिसे डायना के नाम से मौसूम किया जाता था। कैसर डेसियस की हुकूमत थी जो 249 ईस्वी से 251 ईस्वी तक रोमन सल्तनत का फरमारवा रहा था। मसीही अलैहिस्सलाम के पैरोकार इसी के लगभग ज़माने में अपनी दावत लेकर पहुँचे। रोमन हुक्मरान खुद भी बुत परस्त था। वो मजहब तौहीद की अशात को बर्दाश्त न कर सका। चुनाचे जो लोग ईमान लाए जुल्म का निशाना बन गए। जिन 7 नौजवानों का ये किस्सा है वो शहर के आला घरानों से ताल्लुक़ रखते थे और गालिबन 250 ईस्वी में किसी वक्त ईमान लाकर इस दावत के मुबल्लिग़ बने। पूरा समाज उनके खिलाफ खड़ा हुआ और ख़तरा पैदा हुआ कि उन्हें संसार कर दिया जाएगा। इस पर वो लोग शहर से बाहर निकलकर एक गार में छुप गए। अरबी ज़ुबान में कहफ वसी गार को कहते हैं। उन्हें इसी बिना पर असहाबुल कहफ कहा गया। यही तज़किरा सूरह कहफ में यूँ किया गया है। वो यही दावत देते रहे यहाँ तक कि लोग उनकी जान के पीछे पड़ गए तो बशारत हुई कि जब तुम उनसे और उनके माबूदों से जिन्हें वो खुदा के सिवा पूछते हैं अलग हो गए तो जाओ और फला गार में जाकर पनाह ले लो। उस वक्त जब उन नौजवानों ने गार में पनाह ली फिर अपने परवरदिगार से दुआ की कि ए हमारे रब, हमको तू ख़ास अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे इस मामले में तू हमारे लिए रहनुमाई का सामान कर दे। ये बताते हुए कि इस पर कई बरस के लिए हमने उस गार में उनके कानों पर थपक दिया। महफूज पनाह के एहतमाम की बात सूरह कहफ में इन आयात में बयान की गई है। तुम्हारा परवरदिगार अपनी रहमत का दामन तुम्हारे लिए फैला देगा और तुम्हारे इस मामले में जो कुछ तुम्हारी ज़रूरत है तुमको मुहैया फरमाएगा। तुम सूरज को देखते हो कि जब निकलता है तो उनके गार से दाईं जानिब को बचा रहता है और जब डूबता है तो उनसे बाईं जानिब को कतरा जाता है और वो उसके सहन में पड़े हैं।
یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو اللہ اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے تم کوئی مددگار راہ بتانے والا نہ پاؤ گے. تم ان کو سمجھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں. ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا. اگر تمہاری نظر کہیں ان پر پڑ جاتی تو ان سے تم الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ان کی دہشت بیٹھ جاتی. ہم نے جس طرح اپنی قدرت سے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے ان کو جگایا کہ اس کے نتیجے میں وہ آپس میں پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک پوچھنے والے نے پوچھا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہوں گے؟ وہ بولے ہم 1 دن یا 1 دن سے بھی کم ٹھہرے ہوں گے. وہ بولے تمہارا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنے دن ٹھہرے ہو. خیر اپنے میں سے کسی کو اپنی یہ رقم دے کر شہر بھیجو، پھر وہ اچھی طرح دیکھے کہ پاکیزہ کھانا شہر کے کس حصے میں ملتا ہے اور وہ تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے. اسے چاہیے کہ وہ چپکے سے جائے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، اس لیے کہ اگر وہ تمہاری خبر پا جائیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا اپنے دین میں لوٹا لیں گے، اور ایسا ہوا تو تم کبھی فلاح نہ پاؤ گے. تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ لوگ کم و بیش 196 سال سوتے رہے اور قیصر تھیوڈیسس ثانی کی سلطنت کے 38ویں سال 446 عیسوی یا 447 عیسوی میں بیدار ہوئے. اس عرصے میں مسیحی مبلغین کی کوششوں سے رومن شہنشاہ قسطنطین مسیحی ہو چکا تھا، جس کے نتیجے میں ساری رومن سلطنت میں مسیحی مذہب پھیل گیا تھا. چنانچہ یہ لوگ بیدار ہوئے تو ہر طرف مسیحیت کا غلبہ تھا. قرآن میں ہے کہ ہم نے اس طرح اپنی قدرت سے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے. تفسیر میں لکھا ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دیے کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور تحقیق کے نتیجے میں کسی کو شبہ نہیں رہا کہ یہ اس زمانے کے لوگ نہیں ہیں. مسیحی روایت میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ جس شخص کو کھانا خریدنے کے لیے شہر بھیجا گیا تھا، اس نے جب قیصر ڈیسیس کے وقت کا سکہ کھانا خریدنے کے لیے پیش کیا تو دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید یہ کسی پرانے زمانے کا دفینہ نکال لایا ہے. اس پر دونوں میں تکرار ہونے لگی اور لوگ جمع ہو گئے، حتیٰ کہ معاملہ حکام تک پہنچ گیا. وہاں جب سوالات ہوئے اور اس شخص نے یہ سنا کہ قیصر ڈیسیس کو مرے زمانہ گزر چکا ہے تو دنگ رہ گیا. چنانچہ کچھ دیر تک بالکل دم بخود رہا اور پھر اپنی داستان سنا دی. اسے سن کر حکام بھی حیران ہوئے اور اس کو لے کر اس غار کی طرف چلے جہاں وہ اور اس کے ساتھی چھپے رہے تھے. لوگوں کا ایک ہجوم بھی ان کے ساتھ تھا. وہاں پہنچ کر یہ بات پوری طرح تحقیق ہو گئی کہ وہ واقعی قیصر ڈیسیس کے زمانے کے لوگ ہیں. نئے رومن حکمراں قیصر تھیوڈیسس کو اس کی اطلاع دی گئی تو وہ ان سے ملنے پیدل چل کر آیا. بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد یہ 7 نوجوان غار میں جا کر لیٹے اور یکا یک وفات پا گئے. سورہ کہف میں ہے کہ جب ان کے معاملے میں لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا ان کے غار پر ایک عمارت بنا دو اور زیادہ تفتیش نہ کرو، ان کا پروردگار ان کے حالات کو بہتر جانتا ہے. اس کے برخلاف جن لوگوں کی رائے ان کے معاملے میں غالب رہی انہوں نے کہا ہم تو ان کی غار پر ایک مسجد بنائیں گے. غامدی لکھتے ہیں کہ عرب کے اہل کتاب انہیں اصحاب الرقیم بھی کہتے تھے. بعض اہل علم نے اس سے اصحاب کہف کے غار کا کتبہ اور بعض نے سیسے کی وہ لوح مراد لی جس پر ان کے نام اور حالات بادشاہ کے حکم سے لکھ کر شاہی خزانے میں رکھے گئے تھے. رقیم اس عمارت کا نام تھا جو اصحاب کہف کی یادگار میں ان کے غار پر بنائی گئی تھی. مگر ابوالکلام آزاد کے مطابق الرقیم وہی لفظ ہے جسے تورات میں راقیم کہا گیا ہے اور یہ ایک شہر کا نام تھا. دوسری صدی عیسوی میں جب رومنز نے شام اور فلسطین کا الحاق کر لیا تو یہاں کے شہروں کی طرح راقیم نے بھی ایک رومن نو آبادی کی حیثیت اختیار کر لی اور یہی زمانہ ہے جب پیٹرا کے نام سے اس کے عظیم الشان مندروں اور تھیٹروں کی شہرت دور دور تک پہنچی. مسیحی ذرائع میں ان نوجوانوں کی تعداد پر متضاد آراء موجود ہیں، کہیں 5 تو کہیں 7 اور کہیں 13 تک بھی بتائی گئی ہے. قرآن میں اصحاب کہف کی تعداد کا تعین نہیں کیا گیا ہے بلکہ صرف ان کی تعداد سے متعلق لوگوں کے اختلاف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں کہ اب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور ان میں سے کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. کہہ دو میرا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، ان کو
थोड़े ही लोग जानते हैं।